Hey guys, welcome back to my channel. So today we will do circular flow of income, class 12 economics MP board special macroeconomics lecture 1, 20 marks paper board test included in it. So without wasting our time, we will just recap the previous things, whatever we have studied. We have started yesterday macroeconomics, so whatever we have studied first we will recap that, and then we will move further. This chapter will be completed by today, means introduction and all that. So means circular flow of income will be completed by today. So let's start with the introduction of microeconomics. So origin and concept. Origin and concept. So macroeconomics is derived from a word macros, that means large, and microeconomics is derived from a word that is micros, that means small. So macroeconomics is that part of the economic theory which studies the aggregate units of an economy as a whole. Okay, this definition you will write in your board exam, or if in UT it has been asked. Now, so what is macroeconomics? Meaning of macroeconomics? Macroeconomics is the part of economic theory that studies the aggregate units of an economy as a whole. It focuses on national, means it focuses on national aggregate like national income, national output, and general price level, total employment, general price level, and all this. Okay, so differentiate between micro versus macro, means differentiate between macro and microeconomics. So microeconomics is that part of the economic theory which studies the individual. Microeconomics is that part of the economic theory which studies the individual unit of an economy. Macroeconomics is that part of the economic theory which studies the aggregate units of an economy as a whole. तो फिर हम देखेंगे इसमें कि यूनिट ऑफ स्टडी, ये हमने देख लिया इंडिविजुअल यूनिट्स, ये एग्रीगेट यूनिट्स, ठीक है. सेंट्रल ऑब्जेक्ट, हाँ. फिर हम देखेंगे टूल्स, डिमांड एंड सप्लाई. किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. अंडरस्टूड. फिर हम देखेंगे कि एम क्या था, मेन एम. सो दी means the aim to determine the aim. Microeconomics is the aim to determine the factor of production, price and factor of production, price level and the factors of production. Macroeconomics, it aims to determine the employment level of economic level of an economy. So macroeconomics, it aims to determine the इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट लेवल. ठीक है, ये हो गया. फिर हमने फिर और क्या देखा था हमने कि डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज हाई. ठीक है. फिर उसके बाद हमने देखा कि और उसके बाद क्या, हाँ, फिर हम इसमें से देखते हैं सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, income and employment level, main tools, demand and supply, और aggregate demand and aggregate supply. assumptions ये है. देखो assumptions क्या है. अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो जो नेशनल इनकम, नेशनल इसकी चीज़ें हैं, हम उनको कांस्टेंट रखेंगे. अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो की चीज़ों को कांस्टेंट रखेंगे. और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल लेवल, नेशनल आउटपुट पढ़ रहे हैं तो इंडिविजुअल की आउटपुट, इंडिविजुअल की इनकम से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है, इतने समझ में आया. माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या एग्जांपल्स हैं? इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट. मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट. सो दिस, ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये हाई प्रोबेबिलिटी है
कि 4 मार्क क्वेश्चंस में आ सकता है बोर्ड्स में। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, सो अब हम पढ़ेंगे स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब कि जो अभी हो रहा है। अभी अगर मैं पूछूं अभी बताओ आपके अकाउंट में कितने पैसे, अभी जस्ट अभी बताओ आपके अकाउंट में कितने पैसे, जस्ट अभी, तो ये है स्टॉक कॉन्सेप्ट। जस्ट अभी बताओ, जस्ट अभी। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि आपकी इंडस्ट्रीज में अभी कितनी मशीन्स है, ठीक है, तो अभी बताना है कितनी मशीन। अगर आपके इंडस्ट्री में 4 मशीन होगी, 6 मशीन होगी, अभी, जस्ट अभी, इस समय पर, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक कंसेप्ट। इस समय, अगर मैं बोलूँगी इस समय आपके घर पर कितने मोबाइल फ़ोन रखे हैं, तो आप बोलोगे 5, 4, 2 ऐसे मोबाइल फ़ोन रखे। तो इस समय फॉर एग्ज़ाम्पल 3 रखे, तो इस समय आपके घर पे 3 मोबाइल फ़ोन रखे। इस समय जिस मैंने, तो इसको बोलेंगे आप स्टॉक कॉन्सेप्ट, कि हम टाइम नहीं ले रहे, इस समय मतलब इस समय। ठीक है, तो दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। समझ में आया? Point of time concept. Measured at a particular point of time, it has no time dimension. No time dimension measure उसी समय किया जाता है जब बोला जाता है। जैसे मैंने बोला आपके पास कितने पेन्स है, तो आप बोलोगे सर एक ये पेन है, एक ये पेन है, 4-5 पेन है सर, सॉरी 4-5 पेन है। ठीक है, तो आप बोलोगे ये भी पेन है, ये भी पेन है, तो अभी आपके पास सिर्फ 4 पेन है, तो अभी 4 पेन है, तो इसको बोलेंगे हम स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे? स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर मैं आपके पास पूछूं कि आपके पास कितनी पेंसिल्स है, तो अभी प्रेजेंट में मेरे पास 1 पेंसिल है, ये 1 पेंसिल है, तो ये हुआ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अभी मैंने जस्ट अभी बताया कि मेरे पास सिर्फ 1 पेंसिल है। ठीक है, टाइम, हाँ, अगर मैं वेट करूं कि भाई 2 घंटे 3 घंटे, तो शायद ये पेंसिल 2 या 3 भी हो सकती। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अभी जस्ट मुझे बताओ कि तुम्हारे घर पे कितने फ़ोन है, तो जस्ट अभी बता रहे हो, तो मतलब कि ये है स्टॉक कॉन्सेप्ट। कौन सा? स्टॉक कॉन्सेप्ट। पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट मतलब आपके पास टाइम है ही नहीं, आप अभी बता रहे हो कि आपकी फैक्ट्री में कितनी मशीन्स है या ओके। तो पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इट हैज़ नो टाइम डायमेंशन। इसको स्टैटिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है। एक टाइम मैंने बोला कि इस समय बताओ आपके घर पे फ़ोन कितने हैं, इस समय बताओ आपकी फैक्ट्री में मशीन्स कितनी है, इस समय बताओ कि आपके हाथ में आपके जो आप लिख रहे हो आपके पास पेन कितने हैं, इस समय पर्टिकुलर टाइम पे, नो टाइम गैप। तो ये होता है स्टैटिक कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल नेशनल वेल्थ, बैंक बैलेंस ऑन Jan 1st। अब इससे पूछा पर्टिकुलर डेट, Jan 1st पे उस समय पर आपके पास बैंक बैलेंस कितना है वो बताओ। तो वो पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में 1 Jan को, वो बताओ। तो वो इस टाइम पीरियड में बोल रहे हैं, तो वो होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब अगर हम फ्लो कॉन्सेप्ट पर, ये देखो स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब स्टॉक ऑफ द कैपिटल। उस समय पे कितनी चीज़ें हैं आपके पास, उस समय पे मैं आपसे अगर पूछूं आप उस समय पे आपके पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, या उस समय पे आपके पापा के बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, उस समय में इस समय पे आपके हाथ में कितने पेन है, इस समय पे आपके पास क्या बोलूं, इस समय पे आपके पास कौन सी कॉपी है, वो। तो वो सब स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और फ्लो कॉन्सेप्ट में बोलूँ तो टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अगर मैंने पूछा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल बॉर्न दिस ईयर, तो मतलब वो टाइम गैप हो गया, कितने स्टूडेंट्स इस साल बॉर्न हुए। तो पीरियड ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट,
measured over a period of time, per hour, month और ईयर, ठीक है। तो नेचर है डायनामिक कॉन्सेप्ट, क्यों? क्योंकि इससे पीरियड ऑफ टाइम, या तो ईयर, मैं पूछूंगी नंबर ऑफ चिल्ड्रन टेक बर्थ दिस ईयर, तो आप उस पूरे ईयर का मुझे बताओगे, मतलब टाइम लेकर टाइम पीरियड में बता रहे, उस समय ही नहीं बता रहे कि उस समय, अगर मैंने पूछा कि उस समय कितने बच्चे पैदा हुए, उसी समय आपको बताना कितने बच्चे पैदा हुए उस समय, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। अब मैंने पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन टेकन, नंबर ऑफ children born number of children born on this year, तो आप उसको टाइम थोड़ा लेकर फिर देख रहे हो, तो उसमें चेंज भी हो सकता है। अभी 4-5 बच्चे बॉर्न हुए, फिर 5-6 मतलब 2-3 और हो जाएंगे जब टाइम पीरियड होगा, तो वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने जैसे स्टॉक कॉन्सेप्ट पूछा था कि इस समय आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे, तो अगर मैं पूछूं कि इस साल आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे, तो अब वो उस दिन का जो पैसा है, जितना भी पैसा था, वो बढ़ सकता है। मतलब मान लो अगर आपके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपीज़ है, तो वो 2,000 हो सकता है, 2-3 घंटे बाद 2,000, 3,000, 4,000 ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम फ्लो कॉन्सेप्ट, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम पे लेंगे। तो नेशनल इनकम, मंथली सैलरी, कंजम्पशन, तो ये सब है फ्लो कॉन्सेप्ट कि मंथली सैलरी बताओ। तो मंथली सैलरी अगर आपकी 1,000 है, तो वो बढ़ भी सकती है, 2,000 हो सकती है, 4,000 हो सकती है, 5,000 हो सकती है, तो ऐसे बढ़ सकती है ना। तो इसलिए जिसको बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। अब देखो अब ये आपको समझ में आए, कंपैरिजन करोगे वर्सेस फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो के बीच में, तो अब आपको ये अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बेसिक्स आपका क्लियर कर दिया। तो देखो बेसिक्स मीनिंग मेजर, देखो ये होता है मेजर्ड एट अ पॉइंट, उसी पीरियड ऑफ टाइम, नहीं मतलब सॉरी, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब उसी समय आप करके दो मुझे। फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम मतलब पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 घंटे, 1 हफ्ता, ऐसा पीरियड ऑफ टाइम। टाइम डायमेंशन, नो टाइम डायमेंशन, हैज़ टाइम डायमेंशन। स्टॉक वेरिएबल में कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, मुझे उसी वक्त जानना है, और इसमें पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत टाइम है, मतलब हैज़ टाइम डायमेंशन। नेचर इसका स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, इसमें चेंज नहीं होता। अगर मैं पूछूंगी उसी समय आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे, तब उसी समय बताओगे आपके बैंक अकाउंट में 1,000 पैसे, 1,000 रुपीज़ 1,000 है, ठीक है। तो चेंज तो हो नहीं रहा है ना वो। अगर मैं 2-3 घंटे बाद 2-3 घंटे रुकूंगी, तो चाहे वो 1,000 रुपीज़ 2,000 हो गए, 3,000 हो गए, तो वो फ्लो वेरिएबल हो जाएगा, डायनेमिक कॉन्सेप्ट, मतलब वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंसी मतलब कि अफेक्ट्स फ्लो, मोर कैपिटल इज इक्वल्स टू मोर फ्लो, ज़्यादा कैपिटल होगा तो ज़्यादा फ्लो होगा। चेंजेस स्टॉक, सेविंग्स चेंजेस वेल्थ, सेविंग्स जो होती है वो वेल्थ को चेंज कर देती है, सेविंग चेंजेस वेल्थ, चेंजेस स्टॉक मतलब सेविंग से, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतनी 3 चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लो, अब टाइप्स ऑफ फ्लो में, हाँ ये बीच में कहाँ से टपक गया, पहले मुझे आपको कुछ और बताना था। हाँ इसमें वो ऐड नहीं हुआ। देखो कि जितने सेक्टर्स हमें पढ़ने हैं वो कौन कौन से, 4 सेक्टर्स हम मतलब देखो 2 सेक्टर्स यूजुअली हम पढ़ते हैं, जो 2 सेक्टर्स में पहले थे वो डिलीट है, तो वो जो 2 सेक्टर्स वो हम नहीं पढ़ेंगे। हम कौन से पढ़ेंगे, एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर और एक तो हाउस होल्ड सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर 2 सेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, ये 2 सेक्टर्स जो है। तीसरा सेक्टर था गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम ये गवर्नमेंट सेक्टर और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब फर्म्स और हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें पढ़ते हैं।
तो हम ये 2 चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अभी नहीं देखेंगे, हम पहले इसको देखें। हाँ, तो अब देखो क्या हो रहा है। ये हाउस होल्ड, ठीक है, दिख रहा है ना सबको? थोड़ा ऐसे ऊपर कर देती हूँ कि सबको दिखे ना ऐसा। तो अब देखो, ये जो है मतलब ये हाउस होल्ड और ये फॉर्म्स, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड मतलब ये घर है, और ये फॉर्म मतलब प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे काम हो। तो देखो फैक्टर सर्विसेज, अब फॉर एग्जांपल देख लो यहाँ, अब इस कोई एक पर्सन या कोई एक आदमी, अरे ओ सॉरी, हाँ, कोई एक आदमी और छोटा नहीं, कोई एक आदमी क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे? कोई एक आदमी मजदूरी कर रहा है, ठीक है। अब वो मजदूरी कर रहा है मतलब उसको वो काम पे जा रहा है, ऐसे वो काम पे जा रहा है, यहाँ पे वो काम पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो काम करने जा रहा है। अब मान लो यहाँ पे वो काम कर रहा है, या तो क्या बोलूँ, डॉल बनाने का वो काम कर रहा है, या कोई और बना रहा है, टॉयज बनाने का काम कर रहा है, मान लो कार बनाने का काम कर रहा है, या रोबोट्स, हाँ मान लो कार बनाने का वो काम कर रहा है। तो ये जो बंदा है, ये अपनी फैक्टर सर्विस दे रहा है, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल। तो ये जा रहा है काम पे, घर से निकल कर ये जा रहा है काम पे, और कार बना रहा है फैक्ट्री में, मतलब प्रोडक्शन सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसने क्या बनाया? कार बनाई इसने, ठीक है, कार बना ली। अब जब इसने कार बनाई, तो अब कार बनानी, तो उस चीज़ का क्या मिलेगा? ऑब्वियसली बात है ना कि कोई काम पे जाता है तो उसके बाद उसे पैसे मिलते हैं, कोई काम पे जाता है तो उसके बाद उसे पैसे मिलते हैं। तो अब ये गया काम पर, कहाँ गया? ये गया काम पर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अगर आपके पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी ऑफिस जा रही है, तो मंथली उन्हें पेमेंट मिलती होगी, पेड होते होंगे वो, तो मतलब उनको पैसे मिलते होंगे। तो इसने भी क्या किया? इसने भी पैसे कमाए। मान लो इसने 4000 ओके वेट फॉर अ मिनट, कितने पैसे कमाए वो बता रहे। मान लो इसने 45,000 रुपीज़ कमाए, ठीक है। कितने रुपीज़ कमाए? मान लो इसने 45,000 रुपीज़ कमाए। तो अब ये इसने फॉर्म से कितने रुपीज़ का, तो उसने कितने पैसे दिए? उसने दिए 45,000, ठीक है। अब ठीक है, तब अब क्या हुआ? अब ये मान लो कि मुझे कोई काम आ गया, ठीक है, कि मुझे अपने भाई के लिए या किसी को गिफ्ट करने के लिए या किसी के लिए मुझे कुछ लेना था। तो मैंने क्या किया? मेरी तो कार तो वो जो लड़का है उसकी क्या है, उसकी वो ये जो है ना, ये इंसान, इसकी जो है वो क्या है, अब ये जो इंसान है, इसने जो अब इस इंसान को इस इंसान को किसी को गिफ्ट देना था, टॉय कार है, उसको गिफ्ट देना था किसी को। तो उसने क्या किया? जो उसको 45,000 रुपीज़ मिले थे, उसने क्या किया? वो गया उस कार की फैक्ट्री में, उसने बिल फाड़ा, कितने का? 45,000 का उसने बिल, ठीक है। तो इसने क्या किया? इसने चेक फाड़ के दिया 45,000 का, किसको? उस दुकानदार को, ठीक है, उस दुकानदार को इसने दिया। उसके बदले इसने क्या लिया? उसके बदले इसने इसको पैसे दिए, चेक फाड़ा 45,000 का, और इसके बदले इसने क्या लिया? इसके बदले इसने गुड्स एंड सर्विसेज ले ली। क्या ली? गुड्स एंड सर्विसेज ले ली, ठीक है।
समझा क्या किया इसने? इसने ये काम करने घर से निकला काम करने के लिए। घर से जैसे ही निकला काम करने के लिए तो निकला, और ये कार फैक्ट्री में काम, ये घर से निकला तो वो गया अपनी फैक्ट्री में जहाँ वो कार्स बनाता था। उसने कार बनाई और उसको पेमेंट मिली 45,000 की पेमेंट मिली। तो उसको किसी को गिफ्ट करनी थी कार, तो उसने क्या किया, उसने वही 45,000 का चेक फाड़ कर वो शॉपकीपर जो उसने ही कार बनाई थी, उसी की कार ने उसको, मतलब उसने ही जो कार बनाई थी वो कार उसने खरीद ली, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ले ली। अब ना इसमें अजम्पशंस मारना, इसमें अजम्पशन ये कि नो सेविंग, कोई बचत नहीं हो रही है, ठीक है। 45,000 इनकम है, 45,000 ही हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। कोई सेविंग्स नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अंडरस्टूड? इतना सबको समझ में आया पक्का? इफ़ यू हैव एनी डाउट राइट इन द कमेंट सेक्शन। नाउ इफ यू विल मूव ऑन, इसमें तो ऑब्जेक्ट या अब टाइप्स ऑफ फ्लो, रियल वर्सेस मनी। देखो फ्लो होता है रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब मैं आपसे पूछूंगी रियल फ्लो और मनी फ्लो होता क्या है, बताती हूँ। देखो मुझे लग रहा है वो सबको दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखो रियल फ्लो क्या है। देखो आप मुझे बता सकते हो कि जो मतलब कि जो क्या बोलूँ, हाँ अब मनी फ्लो बताते पहले। मनी एम से डिनोट कर रही हूँ, मनी एम और एफ, मनी फ्लो, ठीक है। तो मनी फ्लो, अगर मनी फ्लो आपको क्या लग रहा है कि जो मनी फ्लो है वो कहाँ से, क्या मतलब अगर बता सकते हो कौन कौन से नंबर पर मनी फ्लो हो रहा है, ये मुझे बताओ कौन कौन से नंबर पर मनी फ्लो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू से है, ये ब्लू से जो है ऐसा और ये ऐसा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मनी फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मनी फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? मनी फ्लो हो रहा है। तो मतलब 2 और 3 पे मनी है, तो 2 and 3, इसको हम मनी फ्लो बोलेंगे। और इसको हम एक और चीज़ से बोलते हैं, इनर सर्कल। इनर सर्कल अगर याद ना हो कि आप कंफ्यूज हो रहे हो आउटर सर्कल और इनर सर्कल में, तो आप सोचो कि मनी को हम शो ऑफ तो नहीं करना ना भाई, देख पैसा है, पैसा चोरी हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं। तो छुपा के रखते हैं मतलब ट्रेजर में रखते हैं, तो इसलिए हम उसको इनर छुपा के रखते हैं, छुपा दिए तो वो इनर सर्कल, ठीक है, इसलिए इनर सर्कल बोलते हैं। अब आप मुझे बताओ कि रियल फ्लो RF, ठीक है। रियल फ्लो में आप मुझे बताओ कि जो फैक्टर सर्विसेज और गुड्स, फाइनल गुड्स और प्रोडक्ट्स कहाँ मिल रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो, मैं दूसरा कलर लेती हूँ, ये ले लेती हूँ। यहाँ ये देखो, ये फाइनल गुड्स और ये फाइनल गुड, तो ये 1 और ये 4 में हो रहा है, 1,4 में हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, आउटर सर्कल। क्या बोलेंगे? आउटर सर्कल। और इसको हम बोलेंगे इनर सर्कल। क्या बोलेंगे? इनर, क्योंकि मनी को हम दबा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, तो इनर, ठीक है। तो समझ में आया कि इनर सर्कल हम किसको बोलेंगे, मनी को, और आउटर सर्कल हम किसे बोलेंगे, फैक्टर्स को। रियल फ्लो, आउटर सर्कल रियल फ्लो और इनर सर्कल मनी फ्लो। क्यों? क्योंकि मनी को हम ट्रैप करके रखते हैं, तो इनर सर्कल, और फैक्टर्स और इन सबको इतना ट्रैप नहीं करते, तो ये आउटर फ्लो। इतना समझ में आया? आगे बढ़े तो ये टाइप्स ऑफ फ्लो, रियल वर्सेस फ्लो आपको समझ में आया कि रियल फ्लो क्या है। रियल फ्लो एक्सचेंज ऑफ फैक्टर सर्विसेज, मतलब रियल फ्लो मतलब एक्सचेंज ऑफ फैक्टर सर्विस, जो हमने 1 and 4 में देखा, 1 and 4 में देखा, जिसमें कोई का मनी का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। फैक्टर मतलब वो घर से निकला, उसने फैक्टर मतलब अपना काम किया, अपनी फैक्ट्री में कार बनाई, और फिर और फिर उसने क्या खरीदा, उसने एक कार खरीदी। तो इसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा कि उसने पैसे दिए, ये हमने नहीं देखा, ये हम मनी फ्लो में देखेंगे, ठीक है।
अब मनी फ्लो में हम देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर फैक्टर 7, मतलब अब उसमें हमने सेकंड और थर्ड में हमने देखा था कि पहले पेमेंट उसको की गई, फिर उस पेमेंट से उसने चेक फाड़ के दिया, तो वो एक्सचेंज ऑफ मनी हुआ। तो एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर फैक्टर 7, तो एक्सचेंज ऑफ मनी फॉर फैक्टर सर्विसेज, वेजेस के फॉर्म में उसे पैसे मिले और उसने किस पे स्पेंड कर दिया, उसने कार पे स्पेंड कर दिया। और ये अजम्पशन है कि नो सेविंग्स, कोई भी सेविंग्स नहीं है, जितने पैसे उसके पास आए उतने पैसे उसने खर्च कर दिए। तो देयर इज नो सेविंग्स। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ देयर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई विल टेल यू इज, पहला, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन। मतलब अगर 100 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ है, टोटल प्रोडक्शन हुआ है 100 करोड़ का, तो टोटल कंजम्पशन भी 100 करोड़ का ही है। मतलब टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन, मीन्स टोटल प्रोडक्शन अगर 100 करोड़ का हुआ है तो टोटल कंजम्पशन भी 100 करोड़ का ही होगा। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। फ्रॉम फैक्टर पेमेंट, फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट 100 करोड़ है तो उसकी इनकम भी कितनी होगी, 100 करोड़। फैक्टर पेमेंट 100 करोड़ है तो फैक्टर पेमेंट अगर 100 करोड़ है तो उसकी इनकम भी कितनी होगी, उसकी इनकम भी 100 करोड़ होगी। अब तीसरा, टोटल एक्सपेंडिचर 100 करोड़ है इज इक्वल्स टू इनकम उसकी 100 करोड़ होगी। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल वो खर्च 100 करोड़ कर रहा है तो मतलब उसकी टोटल इनकम भी कितनी है, 100 करोड़। तो ये याद रखना, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन। टोटल फैक्टर पेमेंट इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम, मीन्स टोटल फैक्टर पेमेंट इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम। फिर क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर कि उसने कितना खर्च किया, 100 करोड़ खर्च किया तो उसका इनकम भी 100 करोड़ होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल एक्सपेंडिचर खरीदा उसने, कंजम्पशन किया तो वो 100 करोड़ का, तो मतलब इनकम भी उसकी 100 करोड़ की। तीन चीज़ें, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन, टोटल फैक्टर क्या, टोटल फैक्टर पेमेंट इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम। फिर टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल कंजम्पशन क्या मीन्स इज इक्वल्स टू टोटल इनकम, मतलब इनकम भी उसकी 100 करोड़ है, एक्सपेंडिचर भी वो 100 करोड़ का ही कर रहा है, तो नो सेविंग्स। ठीक है। फोर्थ हमने पढ़ा रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो। अगर रियल फ्लो उसके पास 100 करोड़ है तो मनी फ्लो भी उसके पास 100 करोड़ ही होगा। ठीक है, मनी फ्लो 100 करोड़ में ही होगा। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ, सुनो। मैंने मनी फ्लो इज इक्वल्स टू रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो क्यों बोला, देखो रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप देख सकते हो कि देखो यहाँ से 100 मतलब 45,000 मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ इसने इसको 45,000 दिए, फर्म ने हाउस होल्ड को, जो पर्सन काम करने आया था उसको 45,000 दिए और उसने 45,000 ही क्या किया, 45,000 ही पेमेंट कर दी। तो मतलब ये 45,000 ही घूम रहे 45,000 ही घूम रहे, है ना। तो इसलिए मनी फ्लो इज इक्वल्स टू रियल फ्लो बोला। अंडरस्टूड, इतना समझ में आया। 100 करोड़ ही घूम रहे तो मनी फ्लो इज इक्वल्स टू रियल फ्लो, इतना समझ में आया। हाँ, अब सेक्शन ए, अब ये है आपका टेस्ट, जो 20 मार्क्स का टेस्ट जो इंक्लूडेड था, ये है वो आपका टेस्ट। तो देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, 6 मार्क्स का एमपी बोर्ड रिलेटेड है। ठीक है, 6 मार्क्स का। अब देखो, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। इन्वेंट्री इज अ डैश कॉन्सेप्ट। इन्वेंट्री कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट, स्टॉक कॉन्सेप्ट, या बोथ या नन। इन्वेंट्री कौन सा कॉन्सेप्ट है, या आप मुझे कमेंट में, इन्वेंट्री कौन सा कॉन्सेप्ट है या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। सेकेंड, रियल फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड,
रियल फ्लो को क्या बोलते हैं? रियल फ्लो को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था, इधर ही बताया मैंने कि आर एफ को हम रियल फ्लो को हम आउटर सर्कल और क्या फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। फिजिकल मतलब हम फिजिकली काम करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम फिजिकल फ्लो बोलेंगे, ठीक है। तो रियल फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल, ठीक है। ओ सॉरी, आंसर ही बता दो। मैक्रो वर्ड इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, अब ये तो आपको आता हो, या तो मैक्रोस या तो माइक्रोस, विच इज एन इंजेक्शन, सेविंग्स, टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट। ये मैंने ये मैंने नहीं पढ़ा। ये रुक जा, अभी अभी उस पर मत आना, अभी उस पर मत आओ। देखो अब सुनो, अब देखो सी यू ई टी के लेवल पे ले जा रही हूँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना उसके लेवल पे मैं ले जा रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो, हमने देखा था कि जो 45,000 रुपीज़ थे वो ऐसे घूम रहे थे, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहे थे, ये हमने देखा था। अब क्या हुआ कि क्या सुनो, ये जो देखो, अब मैं यहाँ से ना समझ लो, देखो यहाँ पे भी 45,000 ही घूम रहे थे सारी जगह। अब मान लो यहाँ, अब देखो, अब मैं थोड़ा दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ, दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो 45,000 भूल जाओ, मतलब 45,000 पहले का एग्जाम्पल था, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लो ये CUET का है, ठीक है, तो ये CUET का ध्यान रखना, ठीक है। CUET या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए काम आएगा। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे ना मान लो कि 100 करोड़ रुपए घूम रहे हैं। कितने रुपए घूम रहे हैं? 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़ पूरे रुपए घूम रहे हैं। अब क्या किया लोगों ने क्या किया, ये समझ लो, ये एक पाइप है, ये जो है ना, ये इसको मान लो कि ये पाइप है, ठीक है, पाइप मान लो। अब यहाँ से ना उस पाइप की जो थी ना, यहाँ से ना पाइप का थोड़ा लीकेज प्रॉब्लम हो गया, लीक हो गया यहाँ से पाइप। किसी ने सोचा कि चलो मैं सेविंग करता, तो यहाँ से जो पाइप को है ना उसने लीक कर दिया, तोड़ दिया। तो कितने पैसे उसने निकाल लिए? उसने निकाल लिए 20 करोड़। कितने निकाल लिए? 20 करोड़ उसने निकाल लिए, ठीक है, 20 करोड़ निकाल लिए उसने। अब जब 20 करोड़ उसने निकाले तो कितने बचे? 80 करोड़ बचे। तो मतलब 80 करोड़ ये पूरा घूम रहा है। अब 80 करोड़ में घूमेगा ये पूरा सर्कल, ये जो पूरा सर्कल है ये 80 करोड़ में घूमेगा। कितने में? 80 करोड़ में घूमेगा। अब क्या हुआ, ये क्या हुआ? लीकेज हो गया। इसको हम बोलते हैं लीकेज। क्या बोलते हैं? लीकेज, ठीक है, क्या बोलेंगे? लीकेज। इसको हम बोलेंगे लीकेज, ठीक है, लीकेज। अब क्या हुआ ये लीकेज, अब देखो इसमें थोड़ा हौच पौच हो गया तो इसको हटा देती हूँ, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लीकेज, ये याद रखना, लीकेज। अब क्या हुआ, अब इससे 80 करोड़ निकाले, 20 करोड़ निकाले, लीकेज हो गया, सेविंग्स कर लिए। अब वो 80 करोड़ ही पूरे सर्कल में घूमते रहेंगे। मतलब 80 करोड़ इनकम, 80 करोड़ उसमें स्पेंड कर दिए, 80 करोड़ लिए, 80 करोड़ स्पेंड कर दिए, 80 करोड़ लिए, 80 करोड़ स्पेंड कर दिए, ऐसे सर्कल में घूमता जाएगा। अब देखो अब क्या हुआ, अब आप देखा है कि भाई, मैं आपको एक वो बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको डॉगी ने, कौन सा एग्जाम्पल दूँ, यही एग्जाम्पल दे दूँ या दूसरा दूँ? इंजेक्शन देगा, इंजेक्शन। अब देखो इंजेक्शन, जैसे आपको रेबीज का इंजेक्शन लगा होगा, टिटनेस का इंजेक्शन लगा होगा, रेबीज का, टिटनेस का इंजेक्शन लगा है। जैसे डॉग चाट लेता है और उस डॉग को अगर रेबीज हो तो उसके 100% चांसेस होते हैं कि वो इंसान नहीं बचेगा, वो मर जाएगा अगर उसके पास उसने तुरंत रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगाया होगा। मतलब 100% गारंटी होगी वो इंसान मर जाएगा, बचेगा नहीं वो इंसान, ऐसा होता है, ठीक है। इतना क्या हुआ,
वो जो देखो आपकी बॉडी में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो वो पोर्स जो होते हैं ना स्वेट निकालते हैं। देखो क्या होता है, अगर आपको चोट लग गई, फॉर एग्जांपल मान लो आपको चोट लग गई, और अगर उस डॉगी को रेबीज का इंजेक्शन ना लगा और उसको रेबीज हो और आपको चोट लग गई, उसने चाट लिया, ठीक है, चाट लिया आप, तो पोर्स होते हैं जिससे स्वेट निकलता है। क्या निकलता है? स्वेट। हमारी बॉडी जो स्वेट होता है, जब पानी ज़्यादा स्वेट निकालती है, स्वेट के फॉर्म में हमें मिलता है। तो जो स्वेट होता है ना, अब वो इतने छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, ठीक है, तो छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, और उसमें उसमें कहीं जो वो रेबीज का जो होता है ना, वो इंजेक्ट हो जाता है। तो मतलब आपकी जो बॉडी पे ना, चाहे खून भी निकला हो या ना निकला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपके रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी है, वो इतने बड़े उसके रेबीज के उससे कई गुना बड़े होता है। अब वो रेबीज जब इंजेक्ट हो गया आपकी बॉडी में, तो 100% मोर्टेलिटी रेट होता है, और ये होता है कि इंसान मर जाएगा, मतलब बचा नहीं सकते अगर इंजेक्शन ना लगा हो, ठीक है। तो अब जो इंजेक्शन हम लगाते हैं, इंजेक्शन यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, या जहाँ पे भी इंजेक्शन लगता है, तो अब वो जो इंजेक्शन है ना, ये देखिए, ये जो है ना, ये जो पार्ट है, इस पे ना इंजेक्ट करा जाता है। ये इंजेक्शन है, मान लो इसमें आपने इंजेक्शन को मतलब सिरिंज को डाला, ठीक है, ये इंजेक्शन है, ठीक है, सिरिंज को आपने डाला, ये नीडल कहाँ बन जाती है पता नहीं, ठीक है, तो सिरिंज को आपने इसमें पुट किया, तो आपने दवाई डाली, मतलब इंजेक्ट किया, कितने रुपए, आपने 100 करोड़ जो घूम रहे थे, आपने 100 करोड़ और डाल दिए, 100 करोड़ और डाल दिए, ठीक है। तो मान लो कि आपने 100 करोड़, ये इतने करोड़ और डाल दिए, तो मतलब जो 100 करोड़ जो घूम रहे थे, अब वो कितने घूमेंगे? अब वो 200 करोड़ घूमेंगे। तो क्या वो घूमेंगे? 200 करोड़ घूमेंगे। तो ये इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट करके वो पैसे डाल दिए, और ये लीकेज मतलब निकाल लिए पैसे, सेविंग कर ली कुछ, ठीक है। तो इतना समझ में आया, सीयूईटी का लेवल का था, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ जाएगा, विच इज़ एन इंजेक्शन, तो आपको ये समझ आ जाएगा विच इज़ एन इंजेक्शन, सेविंग्स, टैक्सेस या इन्वेस्टमेंट। तो आपको समझ में आएगा कि विच इज़ एन इंजेक्शन, तो वो आपको समझ में आ सकता है, अब आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, क्लियरली समझा दिया। उसने क्या करा? इंजेक्ट कर दिया, मतलब इन्वेस्ट कर दिया, 100 करोड़ को 200 करोड़ में कर दिया। फिल इन द ब्लैंक। सेविंग्स रिप्रेजेंट डैश circular flow. Savings represent a dash circular flow. So savings represent a dash circular flow. तो कमेंट में आंसर बताना। सर्कुलर फ्लो इन्वॉल्व डैश फेजेस। सर्कुलर फ्लो कौन से फेज में होता है? सर्कुलर फ्लो कौन से फेज में होता है? ठीक है, अब देखो 30 वर्ड्स में आंसर एनी 3 क्वेश्चन, कोई भी 3 कर सकते हो, जैसे डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स, या व्हाट इज मेंट बाय, क्या मनी फ्लो जो मैंने आपको समझाया उसका वो क्या होता है, या डिफाइन स्टॉक वेरिएबल विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ आप स्टॉक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, या व्हाट आर इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो, इन सर्कुलर फ्लो में इंजेक्शन क्या होता है, तो वो भी आप समझा सकते हो। मतलब आंसर एनी 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब आंसर एनी 2 क्वेश्चन में अब देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स 4 लिखना है, तो वो मैंने आपको बताया था, आप लिख ही दोगे। एक्सप्लेन 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो यूजिंग दी 4 स्टेप डायग्राम, जो 4 स्टेप डायग्राम मैंने बताया था वही डायग्राम बनाना है इसमें, और 2 सेक्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। या तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन कर दो स्टॉक और फ्लो, स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफ्रेंशिएट कर दो 4 पॉइंट। इतना समझ में आया? ओके, सो दिस इज द आंसर की ऑफ दैट। सो चेक योर स्कोर आउट ऑफ 20 एंड कमेंट बिलो कि कितना स्कोर है, और कमेंट बिलो करना, ठीक है।
thank you. The secret of getting ahead is getting started. सीक्रेट क्या है? अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको स्टार्ट अभी से ही करना पड़ेगा. तो stay connected. Lecture 2 coming soon. Like, share, subscribe my channel, and bye everyone. I will take a leave now. So the chapter is over. So bye guys. Love you all. Bye bye. Bye bye. Love you all. Bye.